Good morning, students. In the previous video we have started exercise 8.1 and we have done few questions of it. So let us do some more questions of this exercise. This is the fifth question. Find the area of the region bounded by the ellipse x square by 4 plus y square by 9 equal to 1. It is the ellipse with major axis on y axis. So the form of the ellipse will be like this. Its major axis is y axis because its denominator is greater, and minor axis is x axis. Here the length of minor axis is 2 because it can be written as 2 square, so b is equal to 2. And when you compare it with x square upon b square plus y square upon a square equal to 1, a is 3 here, so the coordinates of this point will be 2 0 because this length is 2, minor axis, semi-minor axis is 2, and it lies on x axis, so y coordinate is 0. This length is semi-major axis, that is equal to 3, so the coordinates of point B is 0, 3. Now this ellipse is symmetrical about x-axis as well as y-axis. So to find its area, we can find the area of a small part in the first quadrant and multiply it by 4 to get the whole area. To find the area of this part, we will take the vertical steps. This will become y and this distance is dx, so the area of this strip is y dx. So the area of this whole part is integral y dx, and the limits of x, they are from 0 to 2. यहाँ से यहाँ तक 0 से 2 तक. लेकिन अब यहाँ हमने क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y को रिप्लेस करना है x से, तो इस गिवन फंक्शन से हम y को x की टर्म्स में लिखेंगे. हेयर y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4. सो y स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4. सो y स्क्वायर equal to 9 into 1 minus x square by 4, so y is under root of it, so y becomes 3 into under root 1 minus x square by 4. 4 एल्सियम लेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में आएगा और ये अंडर रूट 4 का बिकम्स 2, सो वी गेट 3 by 2 इंटीग्रल 0 to 2 अंडर रूट 4 minus x square. Now here we can use the formula for the integration of under root a square minus x square, and its integration is x by 2 under root a square minus x square, so 4 minus x square plus a square by 2, and a square is 4 here, so 4 by 2 sin इनवर्स x by a होता है, तो x by 2 क्योंकि a की जगह आपके पास 2 है, and the limits are from 0 to 2. जब आप 2 रखेंगे अपर लिमिट तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी और यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 साइन इनवर्स 1, और जब 0 रखेंगे तो ये क्वांटिटी भी 0 हो गई और ये भी 0 हो गई क्योंकि साइन इनवर्स 0 0 होता है. तो हमारे पास बचा था 2 साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाय 2, सो वी गेट 2 पाई बाय 2. ये 2 कैंसिल आउट हो गया एंड द एरिया इज 3 पाई बाय 2. Then we multiply it by 4 to get the whole area, so it becomes 6 pi is the area of the ellipse. Now the next one is find the area of the region in the first quadrant which is enclosed by x-axis, line x equal to root 3y and the circle. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और इस गिवन लाइन और सर्किल,
के बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड है वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। इस सर्किल को जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से, तो h और k की वैल्यू यहाँ 0 है और h और k हमारा सेंटर रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, सो r इज़ 2. So it is a circle with center at origin and radius 2. So we draw a circle with center at origin and the radius is 2. So this distance OB is 2. Now the line is x equal to root 3y. So it is a line which passes through the origin and now we will find the intersection of line and circle to get the point A. Here we have x equal to root 3y, so we can write y is equal to 1 by root 3x. Then we will solve these two equations to find the point of intersection of line and circle. Putting this value of y in the first equation, we get x square plus x square by 3 equal to 4. It becomes 4x square equal to 12 LCM लेने के बाद. So x square equal to 3. So x is plus minus root 3. So first quadrant में point A लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसलिए हम x को रूट 3 लेंगे, और x को रूट 3 लेंगे तो y हमारे पास रूट 3 बाई रूट 3 दैट इज़ 1 आ जाएगा, क्योंकि y x बाई रूट 3 था. अब इसका मतलब पॉइंट A आ गया हमारे पास रूट 3 कॉमा 1, और जब x को माइनस रूट 3 लेंगे जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे पॉइंट लाई कर रहा है, तो y हमारा पास -1 आएगा, तो वो ये हमारा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, दूसरा जो लाइन और सर्किल का इंटरसेक्शन पॉइंट. अब ये पॉइंट हमारा रूट 3 1 आ गया, तो इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पर. ये इस पार्ट को इस शेडेड पार्ट को दो पोर्शंस में डिवाइड कर रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है और एक ये पार्ट. तो इसका तो एरिया हम हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं इस ट्राइंगुलर पार्ट का, क्योंकि ये OC रूट 3 के इक्वल है और AC 1, और ये हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ करके निकाल सकते हैं इस पार्ट के लिए. ये कर्व x एक्सिस और इन दो पॉइंट्स के बीच का एरिया है. यहाँ पर x की वैल्यू रूट 3 है और यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, क्योंकि रेडियस 2 है, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स 2,0 हुए. So the area of OAB is equal to area of triangle OCA plus area of ACB. Area of OCA is half OC into AC, that is half root 3 into 1 root 3 by 2, and area of ABC is root 3 to 2 y dx, और y हमारे पास अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा सर्किल की इक्वेशन से, क्योंकि वो सर्किल के लर आर्क के अंडर का एरिया है, तो सर्किल की इक्वेशन से y को सब्स्टिट्यूट करेंगे. अब ये अगेन a स्क्वायर माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज़ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 दैट इज़ 4 बाई 2. साइन इनवर्स x बाई a होता है, a की जगह 2 है हमारे पास, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम रूट 3 टू 2. जब 2 रखेंगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी हमारे पास बिकॉज ऑफ दिस 4, और यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 साइन इनवर्स 1, एंड साइन इनवर्स 1 इज़ पाई बाई 2, सो इट बिकम्स 2 पाई बाई 2. जब आप रूट 3 रखेंगे तो यहाँ से आएगा आपके पास रूट 3 बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस 3, एंड क्योंकि माइनस करेंगे आप लोअर लिमिट रख रहे हैं, तो -2 साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2, सो इट बिकम्स पाई minus root 3 by 2, and this is root 1 is 1 -2, और यहाँ रूट 3 बाई 2 आता है पाई बाई 3 पे साइन में, इसलिए साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2 हो गया पाई बाई 3. तो ये पाई यहाँ आएगा बेटा,
तो इट बिकम्स पाई माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 3. इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो इट बिकम्स पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2. अब दोनों एरियाज़ को हम ऐड करेंगे टू गेट द शेडेड एरिया. सो ट्राइंगल का एरिया रूट 3 बाई 2 था और आर्क के अंडर का एरिया पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2. ये कैंसिल आउट हो गया एंड यू आर लेफ्ट विद पाई बाई 3 square units is the area of our shaded part. That's all for today. Thank you.